Hello everyone, the channel Priyanka Edu Advisor, and I am Priyanka Chauhan. Today we will study class 6th, chapter 14, water. Suppose for some reason your family gets only one bucket of water every day for a week. Imagine what would happen. अगर आपकी पूरी फैमिली के लिए आपको एक बकेट वाटर पूरे वीक के लिए मिले तो क्या होगा फिर? वुड यू बी एबल टू कुक? अब उस आप एक बकेट वाटर से क्या करेंगे? फूड कुक करेंगे, यूटेंसिल्स क्लीन करेंगे, will you use it for bathing or for washing your clothes? What are the other activities you would not be able to do? So what would happen if we do not have easy access to water for a long period of time? अगर बहुत लंबे समय तक हमें water नहीं मिले तो उससे क्या होगा? Water is used for drinking, but उसके अलावा apart from all these activities we use water for many activities in our daily life. So do you have an idea about the quantity of water we use in a single day? How much water you use in a single day? Now one activity is given here. You have to make one table. In this you have to write down how much water is used for drinking, brushing, bathing, washing utensils, and all these things you have to write down for your family. Total water used in a day by a family. You now have a rough idea as to how much water your family uses in a day. Then after this you have to calculate the amount of water needed by your family in a year. Like this you will find out how much water is used by your family. Now divide this amount by the number of members of your family and this will give an idea of the amount of water needed by one member of your family in a year. एक साल में फैमिली का हर एक मेंबर कितना वाटर यूज़ कर रहा है ये आप कैलकुलेट करके देखो. What you will find out कि हम लोग बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ करते हैं. You may now get an idea of the amount of water needed by your village. पूरे विलेज में, पूरे टाउन में, पूरी सिटी, पूरी कंट्री, पूरा वर्ल्ड कितना वाटर यूज़ कर रहा है. So water is very essential for the survival and also water is required for so many activities. You have listed a number of activities for which you use water. Do you think our water requirement is limited to activities like these? Wheat, rice, pulses, vegetables and many other food items every day. We use all these items also. We know that some of the fibers that we use for making जो ये प्लांट्स प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, जो हम खाते हैं, तो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए भी बहुत सारा वाटर चाहिए होता है. फिर उसके बाद जो हम ये फैब्रिक्स हम जो यूज़ करते हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, वो भी हमें प्लांट से ऑब्टेन होते हैं वो फैब्रिक सारे. तो उसके लिए प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वाटर चाहिए. इज़ वाटर नॉट नीडेड टू ग्रो दिस? येस, वाटर इज़ रिक्वायर्ड टू ग्रो दिस. कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेस ऑफ वाटर? वाटर इन इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है. वाटर इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़ फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट वी यूज़. जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जितने भी आर्टिकल्स हम यूज़ करते हैं, वो सब इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं. सो वी नीड वाटर नॉट ओनली फॉर आर डेली एक्टिविटीज़ बट ऑल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग मैनी थिंग्स. वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम? वाटर कहाँ से मिलता है? वेयर डू यू गेट द वाटर दैट यू यूज़? अर्थ पे बहुत सारा वाटर है. 3/4 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय वाटर. बट क्या वो वाटर यूज़ कर सकते हैं हम? सी वाटर? नो. सी वाटर क्या हम उसको पी सकते हैं? नहीं पी सकते. तो जो वाटर हम यूज़ करते हैं, फ्रेश वाटर, वो बहुत लिमिटेड अमाउंट पे प्रेजेंट होता है अर्थ पे. लाइक द वाटर फ्रॉम द रिवर्स, स्प्रिंग, पॉन्ड, वेल और द हैंड पम्प. ये वाटर बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है. Some other might say we get water from the taps. Have you ever wondered where water in the taps come from? टैप में जो वाटर आता है कहाँ से आता है? ये लेक्स, रिवर्स, यहाँ से आता है, सप्लाई होता है घर में. It is then supplied through the network of pipes. Each of us may be getting water into our homes in different ways. कुछ लोगों के घर में टैप से वाटर आता है जो रिवर की सप्लाई से होता है. कुछ लोग बोरिंग से वाटर लेते हैं, अंडरग्राउंड बोरिंग करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर आता है. बट फाइनली ऑल ऑफ अस गेट द वाटर फ्रॉम द सेम सोर्सेज. सेम सोर्स से वाटर आता है. अगर अंडरग्राउंड भी आ रहा है तो वो नीचे अंडरग्राउंड सोर्सेज से आ रहा है, पॉन्ड से आ रहा है, या फिर किस सप्लाई घर में लेक से आ रही है, रिवर से आ रही है, या फिर वेल से आ रही है. वी हैव डिस्कस सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ वाटर. वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम? एंड टू फिल दीज पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स, इन सबको वापस भी तो फिल करना होता है. लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, तो इनको फिल करने के लिए वाटर कहाँ से आता है?
तो ये वाटर आता है रेनफॉल से. डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर? येस, एवरीवन नोज मोस्ट ऑफ दिस वाटर किस में है? ये ओशन और सीज में है. बट ये ओशन और सीज के वाटर में इतना सारा सॉल्ट डिजॉल्व है, मैनी सॉल्ट्स आर डिजॉल्व इन इट, एंड द वाटर इज सेलाइन. सेलाइन मीन्स जिसमें सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं और जो salty होता है टेस्ट में, दैट इज सेलाइन वाटर. सो इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. एंड अदर डोमेस्टिक एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल नीड्स, किसी के लिए भी ये वाटर सूटेबल नहीं है. सो यू माइट हैव हर्ड द फेमस लाइन्स ऑफ द पोएम राइम ऑफ द एंशिएंट मैराइनर, water, water everywhere, nor any drop to drink. Here the poet has described the plight of the sailors on a ship. सेलर्स जो शिप में गुम हो जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं ओशन में, वो लोग क्या बोलते हैं कि हर तरफ पानी ही पानी है, पर एक भी पानी की बूंद ये पी नहीं सकते. Yet oceans play a very important role in supplying the water that we use. Do you find this surprising? After all, the water that we use is not salty. जो हम वाटर, ओशंस कैसे ये वाटर की सप्लाई को पूरा करते हैं? हम जो पानी पी रहे हैं वो ओशन से कैसे आ रहा है? आप सबने इवेपोरेशन पढ़ा है. इवेपोरेशन में वाटर इवेपोरेट होता है, तो ये जो रेन आती है ये कहाँ से आती है? ये क्लाउड्स कैसे बनते हैं? ये ओशन वाटर से ही तो बनते हैं. ये ओशन का जो वाटर होता है सनलाइट की प्रेजेंस में ये इवेपोरेट होता है, ये ऊपर जाके क्लाउड बनाता है. तो सॉल्ट तो इवेपोरेट नहीं होता, सॉल्ट वहीं रह जाता है, सिर्फ वाटर इवेपोरेट होता है. ये प्योर फॉर्म में इवेपोरेट होता है, क्लाउड्स बनाता है, और जब ये रेन की फॉर्म में आता है तो ये प्योर वाटर बन के आता है. और ये प्योर वाटर रिवर्स में जाता है, पॉन्ड्स, लेक्स, वेल्स, हर जगह यही वाटर जाता है. तो अल्टीमेटली वाटर हमें मिल तो ओशन से ही रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, क्लाउड्स बन रहे हैं, रेन आ रही है, बट हम लोग डायरेक्टली ओशन वाटर को, वी कैन नॉट यूज़ दैट वाटर फॉर ड्रिंकिंग. आफ्टर ऑल द वाटर दैट वी यूज़ इज़ नॉट सॉल्टी. मैनी ऑफ अस लिव इन प्लेसेस फार, ओशन से दूर रहते हैं, बट फिर भी हमें सप्लाई, वाटर की जो सप्लाई है वो ओशंस पे ही डिपेंड करती है. हाउ डज़ द ओशन वाटर रीच पॉन्ड्स, रिवर्स, यहाँ तक कैसे पहुँचता है? और ये जो वाटर पहुँचता है ये सॉल्टी भी नहीं होता. तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. दिस इज़ ऑल द वाटर साइकिल. ये सब वाटर साइकिल से आता है. वाटर साइकिल आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी है. इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, डिसअपियर एंड ट्रिक ऑफ वाटर. अगर आप थोड़ी देर के लिए भी कभी गीले कपड़े सुखा देते हैं तो वो थोड़ी देर में ड्राई हो जाते हैं. ठीक है, वो ड्राई, वो कहाँ जाता है, वो वाटर कहाँ जाता है? जो कपड़ों का वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है इवेपोरेट होके. अगर गीली रोड्स होती हैं, रूफ टॉप्स होती हैं, कहीं पे भी थोड़ी देर के लिए वाटर छोड़ दिया जाए, वो अपने आप वहाँ से वाटर इवेपोरेट हो जाता है, वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है. डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 6 इन द चैप्टर 5? इसमें भी जो सॉल्ट डिजोल्व किया था वाटर में, उसको हीट किया था. हीट करने पे वाटर इवेपोरेट हो गया था एंड सॉल्ट वाज लेफ्ट बिहाइंड. और फिर जब उस वाटर को कंडेंस किया गया, वाटर वेपर को जब कंडेंस किया तो उससे वापस हमें वाटर मिल गया प्योर फॉर्म में. तो वाटर वेपर चेंजेस इनटू द वाटर. देन टेक टू सिमिलर प्लेट्स, प्लेस वन ऑफ द प्लेट्स इन सनलाइट. एक प्लेट को आप सनलाइट में प्लेस करो और एक प्लेट को आप किसी भी शेड में जहाँ छाया हो वहाँ पे रखो. दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डालो. यू कैन यूज़ द कैप ऑफ द बॉटल टू मेजर द वाटर. मेक श्योर दैट वाटर डज नॉट स्पिल ओवर. दोनों प्लेट्स को ऑब्जर्व करना आफ्टर 15 मिनट्स. किस में वाटर पहले इवेपोरेट होगा? जो सन में पड़ी थी उसमें पहले इवेपोरेट होगा, क्योंकि वहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा है. शेड वाले में भी धीरे धीरे पानी इवेपोरेट हो जाएगा, बट वो थोड़ा टाइम लगेगा वहाँ उस वाटर को इवेपोरेट होने में. ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर, और ओशंस पे सनलाइट गिरती है, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स, फील्ड्स एंड द अदर लैंड एरियाज, दे ऑल्सो रिसीव सनलाइट. इससे क्या होता है, वाटर जो कंटिन्यूसली इवेपोरेट होता रहता है वो वाटर वेपर में चेंज होता रहता है. एंड द सॉल्ट्स डिजॉल्व्ड इन द वेपर आर लेफ्ट बिहाइंड. और जो सॉल्ट है वो ओशन वाटर में जो सॉल्ट होता है वो रह जाता है और वाटर इवेपोरेट हो जाता है. इन एक्टिविटी 2, डिड यू फाइंड दैट द वाटर ऑल्सो डिसअपियर्ड फ्रॉम द प्लेट केप्ट इन द शेड? दो इट कुड हैव टेकन मोर टाइम, ज़्यादा टाइम लेगा बट इवेपोरेट हो जाएगा. डज द हीट फ्रॉम द सनलाइट रीच देयर? हाँ, हीट तो पहुँच रही है, क्योंकि एयर तो वार्म हुई हुई है ना. अगर सनलाइट है तो एयर तो जो सराउंडिंग एयर है वो तो हीट हो ही जाती है. तो ये जो वार्म एयर है, इट प्रोवाइड्स हीट फॉर द इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन द शेड. शेड में जो वाटर पड़ा है उसको इवेपोरेट करने में जो एयर में हीट है वो हेल्प करती है. द इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम ऑल ओपन सरफेस
of water as it gets continuously added to the air. तो जैसे जैसे वाटर इवेपोरेट होता जाएगा तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और वो वाटर वेपर एयर में कलेक्ट होता जाएगा. हाउएवर इवेपोरेशन वाटर इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस. ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है इवेपोरेशन. दैट इज़ वाई वी रेयरली नोटिस इट्स लॉस्ट फ्रॉम अ बकेट फुल ऑफ वाटर. इन सनलाइट इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फास्टर. ये फास्ट हो जाता है इवेपोरेशन सनलाइट में. ऑन हीटिंग वाटर ऑन अ बर्नर इट्स इवेपोरेशन टेक्स प्लेस इवन फास्टर. अगर आप इसे बर्नर पे गैस पे हीट करेंगे तो ये और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा इवेपोरेशन. नेक्स्ट इज द लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स. प्लांट्स भी वाटर लॉस करते हैं. जैसे ये प्लांट की लीफ है तो प्लांट की लीफ के सरफेस से वाटर इवेपोरेट होता रहता है. एंड द प्रोसेस बाय विच द वाटर gets evaporated from the leaf of the surface is known as transpiration. Plants need water to grow. प्लांट्स को जितना वाटर यूज़ होता है वो प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस में और अदर एक्टिविटीज़ में. जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में बाहर निकल जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. It retains some of its in different parts. Remaining part of the water is released by the plants into the air में release हो जाता है by the process of transpiration. Learn the definition of transpiration. What is transpiration? Water vapor enters the air through the process of evaporation. तो water किस किस process के through air में जा रहा है? एक तो evaporation हो गया, दूसरा transpiration. Transpiration से भी बहुत सारा water vapor की form में convert होता है. How do clouds formed? How are clouds formed? Take a glass half filled with water. Wipe the glass from outside with a clean piece of cloth. You have to take a glass of water. उसको हाफ फिल करना है. बाहर की तरफ से उसको क्लीन करना है उसका सरफेस. उसमें से आइस ऐड करनी है. 2 मिनट्स के लिए उसे रखना है. देन यू ऑब्जर्व द चेंजेस. जो ग्लास का आउटर सरफेस होगा उसमें छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी. ये आप सबने नोटिस किया होगा. ऑल ऑफ यू मस्ट हैव नोटिस दिस. छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं. क्यों आ जाती हैं? वेरी सिंपल. यहाँ का टेम्परेचर लो है. एयर में जो वाटर वेपर्स हैं वो जब इस सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं, ग्लास के सरफेस में कांटेक्ट में आते हैं, क्योंकि एयर आल्सो कंटेन्स मॉइस्चर, वाटर वेपर्स तो प्रेजेंट होते ही हैं. जब ये इस कूल सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे ग्लास के सरफेस में तो ये वाटर वेपर्स यहाँ पे कंडेंस हो जाएंगे. इसलिए छोटे छोटे कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेंगे. छोटी छोटी वाटर की ड्रॉप्स दिखाई देती हैं यहाँ पे. The cool surface of the glass containing iced water cools the air around it and the water vapor of the air condenses on the surface of the glass. This is condensation. यही clouds के साथ होता है. ये जो process of condensation है ये रेन आने में बहुत हेल्प करता है. अर्थ पे वापस वाटर कैसे आ रहा है? वाटर एवेपोरेट हुआ, ऊपर क्लाउड्स में गया, क्लाउड्स फॉर्म हुए बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. वो वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट हो गए. तो एज वी गो हायर फ्रॉम द अर्थ सरफेस इट्स गेट कूलर. टेम्परेचर लो होता जाता है ऊपर जाने पे. एयर मूव्स अप. एयर ठंडी होती जाती है और ठंडी होती जाती है. जब ये बहुत हाइट पे पहुंच जाती है तो एयर इतनी ठंडी हो जाती है कि वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है. Cool that the water vapor present in it condenses to form the tiny drops of water. These are called the droplets. It is these tiny droplets that remain floating in the air. ये air में float करते हैं and appear to us clouds. Now it so happens that many droplets of water come together to form large sized drops of water. Some drops of water इतनी heavy हो जाती हैं कि ये rain की तरह फिर नीचे earth पे आती है. These falling water drops are that we call rain and the special conditions it may also fall as hail or snow. hail हम जो ओले पड़ते हैं उसको hail बोल रहे हैं and snowfall snow की form में भी ये नीचे आता है water. Thus water in the form of vapor goes into air by evaporation and transpiration. evaporation और transpiration से water ऊपर जाता है evaporate होके clouds बनाता है, form the clouds and then come back to the ground as rain, hail or snow. So this is water cycle. अब ये वाटर वापस बैक टू ओशंस कैसे जाता है? ये आपने सोशल स्टडीज़ में पढ़ा होगा. जब रेनफॉल होती है या जो ग्लेशियर्स बनते हैं ये मेल्ट होते हैं. रेनफॉल का वाटर माउंटेन से फ्लो होता हुआ रिवर्स में आता है, पॉन्ड्स, लेक्स इन सब में आता है और ये रिवर्स जो फ्लो होके जाके ओशंस में मिल जाती हैं. Back to the oceans. What happens to the water that rain and snow bring to different regions of the earth? Almost all land surfaces are above the level of oceans के level से ऊपर होते हैं. Most of the water falls on the land as rain and snow. Sooner or later goes into the oceans. This happens in many ways.
स्नो इन द माउंटेन्स मेल्ट होती है, ये फ्लो होके माउंटेन से फ्लो होते हुए स्ट्रीम्स या रिवर्स की फॉर्म में. सम ऑफ द वाटर फॉल्स ऑन द लैंड ऑल्सो फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स. सो मोस्ट ऑफ द रिवर्स ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं लैंड पे और अल्टीमेटली जाके ये सी या ओशन में फॉल होती हैं. तो वाटर ऑफ द रिवर्स दैट फ्लोज, वाटर ऑफ सम रिवर्स ये लेक्स में जाके गिरता है कुछ, that flows into the lakes, बट अल्टीमेटली ये पूरा वाटर वापस ओशंस में चला जाता है. द रेन वाटर ऑल्सो फिल अप द लेक्स, लेक्स फिल हो जाती हैं जब रेन आती है, पॉन्ड्स भर जाते हैं, तो पार्ट ऑफ द रेन वाटर गेट्स एब्जॉर्ब्ड. हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. रेन वाटर का बहुत सारा पार्ट ग्राउंड वाटर सॉइल के अंदर चला जाता है. जहाँ पे भी कच्ची ज़मीन होती है, जहाँ पे भी सॉइल होती है, नॉट दैट सीमेंटेड पार्ट, हमारे घर पे जो फ्लोरिंग होती है या रोड होती है उसके ऊपर से वाटर नहीं जा सकता ग्राउंड के अंदर, सॉइल के अंदर नहीं जा सकता. सॉइल होनी चाहिए, कच्ची ज़मीन होनी चाहिए. जो कच्ची मिट्टी होती है उसी पे जब वाटर गिरता है, जब रेन आती है, तो वाटर नीचे सीधा ग्राउंड में एब्जॉर्ब होता है और वो नीचे अंडरग्राउंड वाटर जाके कलेक्ट होता है, जो हम वेल्स या अंडरग्राउंड वाटर की फॉर्म में यूज़ करते हैं. सम ऑफ दिस वाटर इज़ ब्रॉट बैक टू द एयर, ये वापस वाटर फिर इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन से एयर में आ जाता है. रेस्ट वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर चला जाता है. एंड मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम्स अवेलेबल टू अस, ग्राउंड वाटर की तरह अवेलेबल होता है. जैसे हम वेल्स, ओपन वेल्स, दे आर फेड बाय द ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर इज द सोर्स ऑफ मैनी लेक्स और रिवर्स. इट इज़ ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज़ ड्रॉन बाय हैंड पम्प. हैंड पम्प और ट्यूबवेल से जो वाटर आता है पूरा ग्राउंड वाटर ही तो आता है, अंडरग्राउंड जो वाटर प्रेजेंट होता है. द मोर हैंड पम्प्स और ट्यूबवेल्स जितना ज़्यादा किसी एरिया में यूज़ होंगे तो इस एरिया का जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल होता है, जो वाटर टेबल होती है, वो नीचे चली जाती है. उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिग करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा खोदना पड़ता है, तब जाके वाटर नीचे मिलता है. तो जितना ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर यूज़ होता जाएगा तो वाटर का जो लेवल है वो नीचे चला जाएगा. द लॉस इन द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर ड्यू टू इट्स overuse is worrisome. Paheli wants to share a concern with you. In those areas where the land has little or more vegetation, the rainwater flows away quickly. जिन एरिया में बहुत कम वेजिटेशन होती है, मतलब बहुत कम प्लांट्स होते हैं या बहुत बिल्कुल भी प्लांट्स नहीं होती, जो बैरन लैंड होता है, जब बारिश आती है तो बारिश के साथ तो रेन वाटर होता है वो बहुत जल्दी बह जाता है, बारिश का पानी. अगर कंपैरेटिवली हम कंपेयर करते हैं, किसी एरिया में ज़्यादा प्लांट्स लगे हुए होते हैं तो वो प्लांट्स क्या करते हैं, रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, क्योंकि रूट्स बाइंड करके रखती हैं सॉइल को, तो सॉइल पानी अंदर भी जाता है और रूट्स भी एब्जॉर्ब करती हैं, तो पानी इतना जल्दी बह के फ्लो होके नहीं जाता. फ्लोइंग रेन वाटर ऑल्सो टेक्स द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल अवे विद इट. और टॉप लेयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल की, टॉप लेयर में ही प्लांट्स ग्रो करते हैं. जब इरोजन होता है तो पूरा टॉप लेयर बह के चला जाता है. There are also few areas where most of the land is covered with concrete. बहुत सारे एरियाज़ हैं सिटीज़ में तो कंक्रीट, इसलिए तो सिटीज़ को कंक्रीट जंगल बोला जाता है. हर जगह रोड्स होती हैं, सीमेंटेड रोड्स, और कंक्रीट होता है हर जगह, तो वाटर सीप करके अंडरग्राउंड में नहीं जा पाता, वो पूरा पानी ड्रेन्स में बह जाता है. सो दैट इज़ नॉट यूज़फुल, और अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है इसलिए डिक्रीज़ होता जा रहा है. This reduces the seepage of the rainwater into the ground, which ultimately affects the availability of the groundwater की availability को भी affect करता है. We now know that water brought back to the surface of earth by rain, hail or snow goes back to the oceans. ये हमने देख लिया कि रेन होती है, पहले evaporation होता है, क्लाउड्स बनते हैं, रेन आती है, रेन का वाटर वापस रिवर्स में बह के फ्लो करके ओशंस तक चला जाता है, वापस वो ओशन तक पहुंच जाता है पानी. Thus, water from the ocean and surface of the earth goes into air as vapor, returns as hail, rain or snow, and finally goes back to the oceans. The circulation of the water in this manner is known as water cycle. It is known as water cycle. The circulation of water between ocean and land is a continuous process, and this maintains the supply of water on land. Now, what if it rains heavily? The time duration and the amount of rainfall varies. ये डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है, हर जगह पे कितनी रेन होती है. इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर बारिश होती है कुछ वर्ल्ड में, कुछ जगह पे, कहीं कहीं पे बस कुछ फ्यू डेज़ के लिए रेन आती है. इन आवर कंट्री द रेनफॉल अकर्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन में रेनफॉल आती है. रेन ब्रिंग्स रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज.
and the sowing of many crops depend on the arrival of monsoon. Excess of rainfall may lead to many problems. जब बहुत ज़्यादा रेन हो जाती है तो इससे भी प्रॉब्लम्स होती है. See in this diagram water cycle is given. Oceans का water evaporate होके जा रहा है, cloud से वापस ये water सीधा oceans में भी आ रहा है और यहाँ ponds और rivers की फॉर्म में फ्लो करके फिर ओशन तक पहुँच रहा है. हैवी रेनफॉल, ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है, उससे भी प्रॉब्लम्स हो जाती है. इससे क्या हो सकता है? द रेन्स में लीड टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर. रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स का जो वाटर लेवल है वो राइज हो जाता है, वो बढ़ जाता है वाटर का लेवल. एंड द वाटर में देन स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज. बहुत लार्ज एरियाज में वाटर स्प्रेड हो जाता है, हर जगह पानी पानी हो जाता है, जिससे हम बोलते हैं फ्लड आ गया या फिर बाढ़ आ गई. एंड द क्रॉप फील्ड्स, खेतों में, फॉरेस्ट, विलेजेस, सिटीज़, ये सब के सब पानी में डूब जाते हैं. दे गेट सबमर्ज्ड बाय वाटर, सब पानी में डूब जाते हैं. इन अ कंट्री फ्लड्स कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप्स को भी डैमेज करते हैं, ये डोमेस्टिक एनिमल्स को भी डैमेज पहुंचता है, प्रॉपर्टी को भी हार्म होता है और ह्यूमन लाइफ को भी हार्म होता है जब फ्लड आ जाता है. ड्यूरिंग फ्लड्स द एनिमल्स लिविंग इन द वाटर ऑल्सो गेट कैरिड अवे विद द वाटर्स. फ्लड के टाइम में जो एनिमल्स होते हैं आसपास के वो भी पानी में बह जाते हैं. They often get trapped on land areas and died. The animals living in the water, water की जो animals है जैसे fish हो गई, ये सब animals पानी के साथ बह जाते हैं. और ये land क्योंकि पानी हर जगह land पे भी हो जाता है, they often get trapped on the land areas. तो land areas पे trap हो जाते हैं and they die when flood water recedes. जब ये बाढ़ का पानी वापस चला जाता है तो एनिमल्स, वाटर एनिमल्स तो वहीं रह जाते हैं, तो फिर वो मर जाते हैं लैंड पे. रेन्स ऑल्सो अफेक्ट द एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल. सॉइल में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स भी, एनिमल्स भी अफेक्ट होते हैं रेन से. वॉट हैपन्स इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड. और अगर बहुत टाइम तक रेन ही नहीं आए तो क्या होगा? तो भी अच्छा नहीं होगा. उस कंडीशन को हम बोलेंगे ड्रॉट, जिसे हिंदी में हम कहते हैं सूखा पड़ जाता. कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ इट डज नॉट रेन. पूरे साल भर के लिए अगर रेन नहीं आए, द सॉइल कंटिन्यूस, सॉइल बहुत ही ड्राई हो जाएगा, सॉइल में से वाटर पूरा इवेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि सॉइल में भी कुछ ना मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, तो वो इवेपोरेट हो जाएगा. ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और क्योंकि रेन वापस नहीं आ रही है तो सॉइल बिल्कुल ही ड्राई हो जाती है. बैरन लैंड, सूखी ज़मीन, बंजर ज़मीन हो जाती है. द लेवल ऑफ द वाटर इन पॉन्ड्स एंड वेल्स ऑफ द रीजन गोज़ डाउन. ग्राउंड वाटर का लेवल भी वापस चला जाएगा, क्योंकि रेन नहीं आएगी तो वापस ग्राउंड में वाटर नहीं जाएगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा, तो ग्राउंड वाटर का लेवल भी लो चला जाता है. एंड द ग्राउंड वाटर मे ऑल्सो बिकम स्कैर्स, उसकी भी कमी हो सकती है और इससे ड्रॉट आ सकता है, सूखा पड़ सकता है. इन ड्रॉट कंडीशंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट, तो फूड भी नहीं, फूड और फॉडर जो एनिमल्स जो फूड खाते हैं उसको फॉडर कहते हैं, तो फूड की भी कमी हो जाती है, फॉडर की भी कमी हो जाती है ड्रॉट कंडीशंस में. Droughts occurring in some parts of the country or the world. You must have studied. Are you aware of the difficulties faced by the people living in these areas? तो इस एरिया में जो लोग रहते हैं वो कैसी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते होंगे. एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स की भी डेथ हो जाती है क्योंकि उन्हें फॉडर नहीं मिल पाता है ड्रॉट कंडीशंस में. ह्यूमन बींग्स की भी डेथ हो जाती है अगर बहुत ज़्यादा ड्रॉट हो जाता है तो. हाउ कैन वी कंजर्व वाटर. हम वाटर को कैसे सेव करके रख सकते हैं, वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं. Only a small fraction of water available on the earth is fit for use of plants, animals and human beings. 3/4 surface earth का water से covered है, but that water is not fit for drinking. Ocean water है, ocean water is not fit for drinking. तो थोड़ा small amount of water जो है earth पे वही drinking के लिए usable है. अब उसे हम कैसे conserve कर सकते हैं. Most of the water is in the oceans, इसको हम use नहीं कर सकते. When the level of the groundwater decreases, अगर ग्राउंड वाटर का भी लेवल डिक्रीज हो गया, दिस कैन नॉट बी यूज्ड एनी मोर. अब ये वाटर भी यूज़ नहीं कर सकते. द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ रिमेन्स द सेम, बट द वाटर अवेलेबल फॉर यूज़ इज़ वेरी लिमिटेड. जो यूज़ करने के लिए जो वाटर है वो बहुत लिमिटेड है, और वो जैसे जैसे हम वाटर को ज़्यादा यूज़ करते जाते हैं तो उसका अमाउंट भी डिक्रीज होता जा रहा है. द डिमांड फॉर वाटर इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे. द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज़ इंक्रीजिंग due to the population is increasing, so water demand is also increasing. cities में लंबी लंबी लाइन लगी रहती हैं, क्यू लगी रहती हैं वाटर को भरने के लिए. also more and more water is being used for producing food. फूड प्रोड्यूस करने के लिए फील्ड्स में भी बहुत पानी चाहिए होता है, इरिगेशन के लिए, इंडस्ट्रीज़ को बहुत सारा वाटर चाहिए होता है. so these factors are leading
टू शॉर्टेज ऑफ वाटर, इससे वाटर की शॉर्टेज होती जा रही है हर जगह. नाउ दिस मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे सेव करके रख सकते हैं. दिस इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, जैसे ये रेन आई, ये रूफ टॉप में रेन वाटर कलेक्ट हो गया, यहाँ पे छत पे रेन वाटर कलेक्ट हो गया, ये पाइप के थ्रू रेन वाटर यहाँ आया और यहाँ पे ये इस तरह के स्टोरेज टैंक्स बना दिए जाते हैं. ये स्टोरेज टैंक में वाटर स्टोर हो गया और ये जो नीचे का पार्ट है ये ऐसे ही छोड़ दिया जाता है. ये ग्राउंड के कांटेक्ट में रहता है जिससे कि वाटर यहाँ से नीचे चला जाए. तो इससे क्या होगा, रेन वाटर वेस्ट नहीं होगा. रेन वाटर को सीधा रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके हम नीचे अंडरग्राउंड में वाटर सॉइल में पहुंचा रहे हैं, नीचे अंडरग्राउंड वाटर की फॉर्म में ये कलेक्ट हो जाएगा. या फिर ये वाटर यहाँ पे कलेक्ट भी कर सकते हो. स्टोरेज टैंक्स, आप अपने घर में नीचे स्टोरेज टैंक्स बना सकते हो. इस वाटर को कलेक्ट करके इस वाटर को आप यूज़ कर सकते हो फॉर सो मैनी एक्टिविटीज़. वॉशिंग के लिए यूज़ हो सकता है ये वाटर, प्लांट्स को दिया जा सकता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में वाटर यूज़ हो सकता है. सो कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे, one way of increasing the availability of water is to collect rain water and to store it for the later use. बाद में यूज़ करने के लिए इसको स्टोर करके रखें. तो collecting rain water in this way is called rain water harvesting. जहाँ पे भी वाटर फॉल हो रहा है, कैच द वाटर वेयर इट फॉल्स, उसको कलेक्ट कर लो. क्या करना है, बिल्डिंग्स पे और यहाँ पे जो वाटर कलेक्ट हो रहा है रूफ टॉप पे, ये वैसे भी ड्रेन्स के अंदर बह जाता है, ये नालियों में बह जाता है ये पानी. तो इस वाटर को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर एक एफर्ट कर लें तो ये वापस से वाटर अंडरग्राउंड जा सकता है. दो टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं. रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप टू द स्टोरेज टैंक. फिर ये वाटर मे कंटेन सॉइल फ्रॉम द, थोड़ा बहुत इसमें सॉइल आती है रूफ की, जो इसको आप फिल्टर कर सकते हैं यूज़ करने से पहले. इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक, सीधा पाइप जो है वो डायरेक्टली पिट में कर देना चाहिए. तो ये पिट से सीधा ग्राउंड में ये वाटर सीप होके नीचे अंडरग्राउंड चला जाएगा और ये रिचार्ज कर देगा, रीफिल द ग्राउंड वाटर. एक और ऑप्शन है, अनदर ऑप्शन इज़ टू अलाउ वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड. ये वाटर सीधा ग्राउंड में चले जाए डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स दैट कलेक्ट द रेन वाटर. तो ये रोड साइड ड्रेन्स हैं, ये डायरेक्टली इनसे जो पानी है सीधा सॉइल में चला जाए और नीचे अंडरग्राउंड में जाके कलेक्ट हो जाए. नाउ दीज आर द कीवर्ड्स एंड सम इम्पॉर्टेंट समरी ऑफ द चैप्टर. वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, बहुत ज़रूरी है वाटर. एयर में कैसे जाता है वाटर, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन, दो प्रोसेस से जाता है. वाटर वेपर ऊपर जाके कंडेंस होती हैं छोटी छोटी टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में, जो क्लाउड्स बन जाती हैं और फिर ये क्लाउड्स वापस ये टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एक साथ आती हैं, बहुत हैवी हो जाती हैं. जब ये बहुत हैवी हो जाती हैं तो रेन या स्नो की फॉर्म में ये नीचे अर्थ में आ जाती हैं. रेन, हेल एंड स्नो ये वापस से रिप्लेनिश मतलब भर देती हैं, वापस से रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स, सॉइल, इन सबको भर देती हैं वाटर से. जो सर्कुलेशन है वाटर का बिटवीन द ओशन एंड द लैंड, इसको कहते हैं वाटर साइकिल. एंड एक्सेसिव रेन, अगर बहुत ज़्यादा रेन आ जाती है तो इससे फ्लड आ जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशंस हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं ड्रॉट. द अमाउंट ऑफ वाटर यूजेबल ऑन अर्थ इज़ लिमिटेड. यूजेबल वाटर जिसे हम यूज़ कर सकते हैं बहुत लिमिटेड है, इसलिए हमें वाटर को बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए एंड वी मस्ट सेव वाटर. आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू. इफ़ यू लाइक द वीडियो, please like it, share it with your friends and subscribe the channel, and please press the bell button so that whenever I upload the video you get the notification and you may watch the video. See you in the next video. Till then, bye bye, take care and thank you so much.